Doors will open on the left. Please mind the gap. Smog and dust mix with the air in New Delhi. I buy jasmine for her hair in New Delhi. दिल्ली अपने आप में एक भारत है, ये मुझे अच्छा लगता है. Immigrants, lawlessness and this free beggars, they have spoiled the city. दिल्ली दिल वालों की अच्छी लगती है दिल्ली. गोभी घाट कब से है? 1970 से है. 1970 से. आप यहीं पे हैं कब से? हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? People come from everywhere to this city. All are welcome with a stare in New Delhi. दिल्ली का मुझे एलिटनेस नहीं पसंद है. दिल्ली का मतलब देश की राजधानी नहीं, देश का दिल है. Probably the most aspirational city in the country today. Make Delhi safe. We need more women whose voices can be heard. There is nothing you can't find in our markets. Indifferent behavior, crime, and the people have no tolerance. Socks and dreams sell by the pair in New Delhi. Small state, big heart and bigger political dividends. The election in Delhi is never an ordinary election. Delhi questions, Delhi decides and Delhi delivers a massive verdict for you if Delhi likes you. It's often said, अगर दिल्ली को पसंद आ जाए तो दिल्ली दिल से छप्पर फाड़ के वोट देती है. पर अगर ना आए, then even a small onion can bring a government down, like it did for BJP-led Sushma Swaraj. Delhi is unique. Its people very, very different. ये दिल्ली से है. जुगाड़ है हर चीज के. यहाँ पे हम शक्ल बना के खड़ा कर देंगे. When it comes down to the national capital, it leads on many indices. Be it one of the most fastest growing metropolitans in the world, the second most populous city, and of late, one of the most polluted cities. But with all its inadequacies, with all its challenges, with all its warmth, with all its heart, Delhi belongs to the Dilliwalas, the people, and they come from everywhere. It's a city of migrants. कहाँ से हैं माधव जी आप? हम बिहार से. 0 नंबर. किसके 0 नंबर? सबके. कोई नेता काम नहीं करता. सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे इस बार रिंकू? Politicians secular होने चाहिए. अपना अपना देख रहे हैं, पब्लिक क्या है बाहर में जाएगी. And it's all these people, the rich diversity that comes together to stake legitimate claim over the city-state of Delhi through their own political assertion. अरे भैया अभी तो बहुत बोल रहा है ना. And this time around, one wonders which side will Delhi vote, stand by. Clear mandate, massive mandate, mixed mandate. What will Delhi decide? For a state city so small, Delhi carries disproportionate political heft. It sends just 7 MPs to the Lok Sabha. The Assembly also just has 70 constituencies. The government itself has limited powers. Yet, the symbolism of Delhi is hard to miss. And its recent political history has been stunning. In 2013, a one-year-old political party stunned all by winning 28 of 70 assembly seats. 2015, AAP consolidated with a tsunami by winning 67 of 70 seats. 2020, the Aam Aadmi Party comes back with 62 of 70 seats, with BJP winning just 8, while Congress did not open its account. In 2020, the Aam Aadmi Party secured 53.57% of the vote share, while the BJP got 38.5% and the Congress just 4.3%. The Delhi winters are brutal, as its politics. And it's on this cold January morning that the challenger has decided to muscle flex. BJP leader Parvesh Verma, former Delhi MP, son
of former Delhi Chief Minister Sahib Singh Verma is filing his nominations from a seat that has been the seat of the sitting Delhi Chief Minister since 1998. For the last 26 years, the constituency of New Delhi, the same constituency of Arvind Kejriwal, former Delhi CM and sitting MLA. See that Trishul? He came bearing that Trishul. That man is holding that Trishul. किसके लिए पकड़ रखे हैं? ये दुष्ट केजरीवाल के नाश के लिए भगवान शंकर का त्रिशूल है, जो भगवान शंकर के आशीर्वाद स्वरूप परवेश भाई को दिया गया, जिससे केजरीवाल का यहाँ से नाश होगा। हनुमान जी ने भी आशीर्वाद दिया है। कहाँ है वो गदा? ही तो अभी परवेश जी ने उठाई थी ना गदा भी। गदा और त्रिशूल दोनों है। तो सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से भागने वाले हैं। परवेश वर्मा जी बहुत पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। The nomination procession resembling a victory march, Parvesh Verma knows the importance of this seat. The stakes are high, but the returns will be higher. If Parvesh Verma defeats Arvind Kejriwal, then his supporters say it for what it is. कार्यकर्ता हैं बीजेपी की या ऐसे ही आए हैं? नहीं, हम ऐसे आए हैं। बुलाया था उन्होंने आपको? हाँ जी, हम सबको वोट देना चाहते हैं, सब हम उनको ही करना चाहते हैं। क्यों? इतना काम कर रहे हैं। क्या काम किया है आपके लिए? बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। ये भाई साहब का नाम तो बता दीजिए। मेरे को नाम नहीं पता इनका। नाम नहीं पता है? क्या नाम? परवेश जी, मिस्टर परवेश। बताओ परवेश। अगर वोट देनी है नाम जरूर पता होना चाहिए। Dhols, DJ and the dance of anticipation. माहौल पूरा बना दी। पूरा बन रहा है। पूरा माहौल है। जीतेंगे अब की बार। जीतेंगे। पर देखो ना पापा की तरह तो जितने भी होगा काम हो जाएगा। मुद्दा क्या है? केजरीवाल को हराना ही मुद्दा है। You see the women behind Parvesh Verma, they've come in and he's made sure that they sit right behind him. Optics are everything. This election is about the woman vote. And you can see it right there. Sitting behind Parvesh Verma are all these women, and that's what's the messaging, political messaging he wants to send out right now. The BJP hoping to end its 26-year-old political exile in Delhi through near 11 years of anti-incumbency for the Aam Aadmi Party, built on charges of corruption, of Sheesh Mahal allegations, hoping it's enough to challenge the cult of Kejriwal. हम जैसे शांतिपूर्वक आए थे, वैसे ही मैं आपके साथ ही पैदल शांतिपूर्वक वापस जाएंगे. As the Parvesh Verma procession leaves, Arvind Kejriwal, along with his wife and a few hundred odd women, march in to file his nomination. हम कहते हैं हमारे केजरीवाल जी जन नेता जैसा कोई नेता नहीं है. बहुत अच्छी जीत होगी और 70 में से 70 सीट लेके आएंगे. भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी. केजरीवाल जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे. This frost-bitten day, all roads leading to the constituency of New Delhi. If Aam Aadmi Party wins the election, then Arvind Kejriwal will take oath as Delhi Chief Minister for the 4th time. 2013, a government of 49 days, and then for 2 full terms, 5 saal Kejriwal. आम आदमी पार्टी से नहीं है. नहीं पार्टी का कुछ नहीं. ऑनेस्ट वोटर है बस. अरविंद केजरीवाल आने वाले तो उनको ही देखने आए थे सारे. पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद है. एक अच्छे पॉलिटिशियन है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है. और मैं पार्टी में नहीं हूँ. नहीं मैं बिल्कुल न्यू, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट वोटर हूँ. वोट हम बीजेपी को ही देंगे. अच्छा, वोट बीजेपी. हाँ, उसको ही देंगे. यहाँ पर क्या करने आई है? केजरीवाल आ रहे हैं. जी केजरीवाल जी आ रहे हैं. देखने आई है. मतलब जो उन्होंने काम वाम तो बहुत अच्छे किए हैं, ऐसे नो डाउट. शीश महल की बात होती है, करप्शन, शराब कांड, घोटाला. देखिए ऐसा है कि थोड़ी बहुत तो कमी होती है. कुछ जो सोचता है वो अपने लिए सोचता है. हम सही है, सब सही है, सीधी बात है. हमारे लिए सही हो रहा है तो हम अपनी अच्छी बात करेंगे. दूसरे के लिए गलत चल रहा है तो वो गलत बोले. आपके लिए सही कर रहे हैं? सही है जी. सरकार हम खुद कमा के खा रहे हैं. कोई दे तो है नहीं, हम सरकार हमको दे रही है. सही बात है.
दे दी हमको सरकार, या केजरीवाल दे देगा, या मोदी दे देगा, या पंजा दे देगा, कौन देगा मेरे? किसी पे विश्वास नहीं, किसी विश्वास नहीं है, कोई नेता नहीं पसंद। हम अपने घर के खुद नेता हैं, सरकार क्या करेगी हमारा? The last 3 years of his term had been the most trying. COVID and then corruption charges, jail, accusation of being a Khas Admi residing in a Sheesh Mahal. Is the cult of Arvind Kejriwal still alive? The election results will give that answer. This is a referendum election for or against Arvind Kejriwal. In a contest which is fundamentally bipolar but being fought as triangular. This Delhi election is establishing its narrative. The Congress is not sitting it out. The party office is a buzz. There is a nomination in order. क्या होगा इस चुनाव में? मौसमी, तुम बहुत टाइम से कवर कर रही हो. You've been covering elections for a very long time. Where do you think what's going to happen with the Congress? I didn't want to say जो होगा मंजूर है खुदा होगा, पर जो होगा मंजूर है वोटर होगा. पर कांग्रेस डैमेज कर रही है आम आदमी पार्टी को. Do you think it's going to damage the Aam Aadmi Party? Will it also damage the BJP a bit? No, more so I think it's damaging the minority vote bank of the Aam Aadmi Party that had gone to the Aam Aadmi Party. And it's also damaging the floating voters who hadn't decided whether it's Kejriwal or BJP. When Rahul Gandhi says, ye Paris hai. So, opponent criticizing you is another thing, but a former ally or so-called ally leader criticizing Kejriwal. See, Congress was, the last time around, viewers was 4%, 4.5% or 6% in 2020. Do you see that vote share rising? 4%, 4% it was. I see that rising, but they can only damage the AAP and benefit the BJP if it comes to 12%. The constituency of New Delhi is going to see another candidate. A nomination filed today. The son of a former Delhi chief minister out to exact revenge, to reclaim his mother's turf from a man who dealt her a humiliating defeat, will file his nomination. The sound of the dhols is deafening this morning as the son of Sheila Dikshit, former Delhi MP Sandeep Dikshit, filing his nomination from New Delhi. कांग्रेस जीते और हमारे बच्चों को नौकरी दिलाए और जो विधवा पेंशन दिलाए उनको. आम आदमी पार्टी हार जाएगी. आम आदमी पार्टी की तो कह नहीं सकता, मगर इतना मेरे को पता कांग्रेस इस बार जीतेगी. The Congress party this election might not be the principal challenger, but will it rise above being just a vote cutter? कार्यकर्ता हैं आप लोग? नहीं, मैं जामिया से हूँ, मैंने से जामिया जनरल सेक्रेटरी हूँ. क्या आइडियोलॉजिकली आपको इनका सूट करता है? सर, ये जो सोशलिज्म, नेशनलिज्म और खास करके नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसीज. आम आदमी पार्टी आइडियोलॉजिकली आपको ठीक नहीं लगती? आम आदमी पार्टी आइडियोलॉजिकली हमारे दुश्मन है सर. अगर कांग्रेस थोड़ा भी बढ़िया कर गई तो बीजेपी आगे निकल जाएगी, वो चलेगा? मैम, ये तो फिर वो इक्वेशंस है. अब इक्वेशन जो है वो जनता पे है, बाकी आइडियोलॉजी वो जीतनी चाहिए मैम, कि ये बची रहेगी तब एक स्टॉन्च ऑपोजिशन खड़ा रहेगा. ये नरेशन है ना, कांग्रेस बेहतर नहीं कर सकती, वो नहीं. 4% से कितना कर ले? 20 में 4% थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग उम्मीद करें लगभग 10-11 हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि हमारी. अगर आप 10-11 ले आए तो आम आदमी पार्टी आ जाएगी नंबर 2 पर और बीजेपी चली जाएगी नंबर 1 पर. आइडियोलॉजिकली सूट करेगा? नहीं, आइडियोलॉजिकली मैम ये होगा कि एक डायकोटमी बन जाएगी एटलीस्ट, कि एक है, एक उनका अपोजिशन है. ये मिक्स वाले जो है ना मैम, जिनका कुछ पता नहीं कहाँ पलट जाए, उनसे दिल्ली को मुक्ति मिल जाएगी. क्या रिपोर्ट आ रही है? पॉजिटिव है हमारी तरफ से. नई दिल्ली तो 100% पॉजिटिव है. अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे. सरकार ही हमारी बन रही है तो क्वेश्चन ही नहीं बनता है. अच्छा, माइक है. कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं. किसके लिए आए हैं? संदीप दीक्षित के लिए. जीतेंगे? बिल्कुल. और आएंगे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल. क्यों? अरे वो तो उसको तो प्यार मोहब्बत है जेल की, तिहाड़ जेलों से. अब लग रहा है जीतेंगे. माइक ही चला गया. आपका किस्मत खराब है कांग्रेस का. थोड़ा माइक भी उतर गया. जूते क्यों नहीं पहने? ठंड नहीं लग रहा है? हम जूता नहीं पहनते हैं. किसके लिए आए हैं यहाँ पर?
कांग्रेस के लिए आए हैं। कांग्रेस के लिए आए हैं। कांग्रेस की सरकारी बना के छोड़ेंगे। और जब तक बनेगी नहीं जूता नहीं पहनेंगे। नहीं पहनेंगे। अभी तो अंगड़ाई है। अच्छा, अभी तो फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरा फिल्म बाकी है। The nomination procession in India many times resembles a wedding procession, where you have the band baja, which will keep stopping for everyone behind to galvanize and partake in what is a momentary anticipated festivity, and then the procession moves on. Well, that's the beauty of the electoral carnival. As it moves on, we are going to watch it very closely and report on it in Delhi. Roads, bylanes, gullies of the New Delhi constituency, the Karam Bhumi of the Aam Aadmi Party giant killer. Arvind Kejriwal from the Aam Aadmi Party has held this constituency, but also the Karam Bhumi of the then Delhi political giant Sheila Dikshit, who was the MLA from here since 1998. This election is not easy for the Aam Aadmi Party convener or his party. 2013, 2015, 2020. But 2025 is tough. There is voter fatigue and they are jaded. Leave alone add more voters, but an endeavor to retain the old ones. इलेक्शन पे क्या चल रहा है? इलेक्शन पे कुछ नहीं चल रहा, सभी बीजेपी को ही चाह रहे हैं इस बार। इस बार आपको लग रहा है, ये तो कह रहे हैं सारा वोट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का है। जी, कुछ लोग उनको भी डालना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं डालना चाहते। कहाँ से हैं माधव जी आप? हम बिहार से हैं। कब से हैं दिल्ली में? दिल्ली में हम 2018 से हैं। तो वोट तो अब दिल्ली में बन गया होगा? नहीं, मेरा वोट यहाँ का नहीं है, हमारा बिहार का ही है। दिल्ली का राजनीति देखते हैं या कोई इंटरेस्ट नहीं है? देखते हैं, राजनीति में तो बहुत इंटरेस्ट है। अभी इस बार बीजेपी का लहर है, वही आ रहा है बहुमत से। लग रहा है बीजेपी आएगा? लग नहीं, पूरा क्लियर हो गया है। हम पहाड़गंज में रहते हैं, तो इस हिसाब से आप बताते हैं, देख के वहाँ का माहौल लग रहा है जो बीजेपी का इस बार। आपको पसंद है बीजेपी? हाँ, पसंद है। अरविंद केजरीवाल कैसा दिखते हैं? झाड़ू का जो पूरा वो भी अच्छे हैं। इस कॉलोनी में सारे अरविंद केजरीवाल जी के वोट हैं। ये है धोबी समाज को मिला हुआ है। अच्छा। टाइप 4 कहते हैं इसे, NDMC। अच्छा। तो यहाँ ये सारा अरविंद केजरीवाल का वोट है? हाँ, यहाँ इस बार इधर ही जा रहा है या कहीं और जा रहा है? क्या होगा ये थोड़ी बता सकते हैं, और हवा बन रहा है वो सब आप लोग को भी मालूम होगा। हमें तो कुछ नहीं मालूम, इसीलिए आपसे पूछते हैं। क्या मालूम होता है पत्रकार को? कोई आइडिया नहीं रहता। Over to Delhi's oldest Dhobi Ghat. One community still stands by their former chief minister. The Dhobi community. With a little over 1,300 votes, mostly still bound to the Jharu. ये कैसा वॉशिंग मशीन है? ये वॉशिंग मशीन नहीं है जी। फिर? उनका हाइड्रो मशीन। हाइड्रो मशीन। दादा ये कब से है ये यहाँ पर? ये धोबी घाट कब से है? 1970 से है जी। 1970 से। आप यहीं पे हैं कब से? हाँ। सबसे यहीं पे हैं? क्यों? ऐसे पूछ रही हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? वोट डालते हैं आप सर? बिल्कुल डालते हैं। क्या सोच के वोट डालते हैं? क्या मतलब क्या? अपनी तरक्की के लिए जी, कि हमारे जो लोग हैं थोड़ा ऊपर उठे, उनके लिए कुछ किया जाए। किसी भी पार्टी में या नेता ने किया है ये? हाँ, कांग्रेस करके गई थी। ये जो बिल्डिंग पीछे हमारे क्वार्टर्स हैं, ये भी वही देके गई है। कांग्रेस ही करके गई है जी। अभी तो और पार्टी तो कोई कुछ किया ही नहीं। किसी ने बातों के बताशे बना के चले जाते। जो पार्टी अभी है पावर में, आम आदमी पार्टी, झाड़ू ने कुछ किया है? हाँ, ये छोटे मोटे काम तो कराती रहती है वो भी, छोटे मोटे, जैसे कि पानी की सप्लाई वगैरह उसी की है सब। अच्छा, ये सारा उसका। और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, इसके लिए हमारे को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका।
इसी बात में। तो भाजपा बीजेपी पे कुछ विश्वास अभी हाथ में आई नहीं है तो आई नहीं है तो क्या? पहले आई थी वो मदन लाल खुराना जी थे। अरे वो तो बहुत है। हाँ, उसके बाद में साहिब सिंह वर्मा जी आए हैं। तो ये सब जाते रहे, सुषमा स्वराज नहीं बनी कभी आके। काम जो करेगा वही तो आएगा जी, है कि नहीं? आप कहीं काम करेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो आपको लोग ज्यादा लाइक करेंगे। सही बात। ये है जी, आजकल की राजनीति भी ऐसी है, लोग भी ऐसे समझदार हो गए। कैसी समझदारी? समझदारी यही कि हमको किसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसको नहीं बढ़ाना चाहिए। जो समाज के लिए करे, समाज के लिए करे, हमारे परिवार के लिए करे, उसको आगे बढ़ाता है। चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस बार? 0 नंबर है चुनाव में। है 0 नंबर। किसके 0 नंबर? सबके। कोई नेता काम नहीं करता। कोई करता है? वोट तो डालते हो गया? वोट डालते हैं। किसी पार्टी ने नहीं किया आज तक का? बिजली का बिल भी हमारा ना कमर्शियल लगा रहे हैं। जब कांग्रेस का रास्ता है कुछ नहीं था भाई साहब। कुछ नहीं था माने? यानी बिजली सस्ती थी, बढ़िया काम होता था, सारे काम होते थे। 15 साल में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। देख के जाते हैं और आ जाते हैं। जैसे आप आ गए ना वैसे नेता भी आ जाते हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त? वो तो सही है, हम चुनाव के वक्त ही आते हैं। गवर्नमेंट फेल है। किसको आना चाहिए? देखो है तो दिल्ली ना, मुख्यमंत्री के अंडर में आती है ना। हाँ। ये भी दिल्ली है ना, नई दिल्ली। हाँ। केंद्र गवर्नमेंट के अपने कानून अलग और एमसीडी में बड़ी फैसिलिटी है। बिजली का बिल सस्ता है, पानी सस्ता है। एमसी में दिक्कत है। किससे परेशान है? केंद्र सरकार से जी। केंद्र से? राज्य से नहीं है? नहीं, राज्य सरकार बड़ा काम अच्छा कर रहा है केजरीवाल। ये बताइए, जो काफी कुछ बीजेपी कह रही है आजकल कि केजरीवाल ने इतना पैसा अपने घर में लगाया, केजरीवाल ने। आप रह रहे हो एक जगह पे, आपका घर है, आप तो लगाओगे पैसा। भाई उसका घर है, जैसा मर्जी रखे, अपने घर को बढ़िया से बढ़िया रखे। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा घर हो, अच्छी फैसिलिटी मिले। कब से है यहाँ पर? मैं यहाँ पर सन 71 से मुझे। यहाँ की राजनीति कैसे देखते हैं? नहीं देख पाता जी। देखते ही नहीं है? नहीं, मैं तो झूठ क्यों बोलूंगा, समय नहीं है मैडम जी। वोट डालते हैं? हाँ, वोट देता हूँ। पहले मैं कांग्रेस को देता था, अब उनको देता हूँ, केजरीवाल जी को जी। क्या सोच के देते हैं? ये हमारा घाट बंद होने वाला था जी। अच्छा, ये घाट बंद होने वाला? हाँ जी, वो सिर्फ पैसों के माध्यम से बिजली का बिल जो है ना हमारा बहुत ज्यादा हो गया था। हाँ जी, सभी घाटों का 4 करोड़ से ऊपर था जी। अच्छा, तो एक शीला दीक्षित जी के पास गए थे, मगर उन्होंने जो ना स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया था मैडम जी। मगर केजरीवाल जी आए थे, कहते मैं जीतूं या हारूं, मगर मैं आपके पानी का पैसा कम करा के रखूंगा जी। किया मैडम जी, पूरा माफ करा जी पैसा उन्होंने। अब जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं ये उन्हीं के फंड से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र पे विश्वास नहीं है, राज्य सरकार पे विश्वास? हमें केजरीवाल जी पे विश्वास है जी। गाना बहुत अच्छा गाते हो। गाना तो अब तो वो जब मैं वो ऑटोमेटिक गाना गाता हूँ, मैं किसी कहने से नहीं आते मेरे गाने। अच्छा चलिए, वोट डालते हैं। पहले तो हम कांग्रेस से वाले थे, कांग्रेस की देन है जो हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। और अब आम आदमी चल रहा है जी। आम आदमी है तो झाड़ू पे विश्वास है? जी, हमें तो इतने फ्री बिजली भी दी थी, सब कुछ दिया था, 200 यूनिट फ्री बिजली भी दे रहा था। इस बार आपको लग रहा है झाड़ू ही है? हमारा तो जी झाड़ू की तरफ होता है, बाकी कहीं जीते कोई भी। पार्टी का नाम मतलब पार्टी आ गया, तो इसमें क्या हो गया? हमारी मर्जी हम किसी को देते हैं। सही बात। The prestigious assembly seat of New Delhi is small, but holds the biggest rewards. Its voters go beyond of just being the inhabitants of the Lutyens bungalows. Mostly, they come from the slums or government employees. If Delhi is the heart of India, then Nai Delhi is the Dil of Delhi. Who will win their heart? It remains to be seen.